सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तूचो सज्जन मेंडिया सिस उतार। नैन महंजे तरस दे कद पसींदी दार। दान महंडा तली खाक जे मिलै तां मस्तक लाइया। कूड़ा लालच छड्डिया होए एक मन अलख ध्याइया। फल तेवे हो पाइया जे वेही कार कमाइया। जे होवै पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइया। मत थोड़ी सेव गवाइया बेशुमार अथा। अगणत अतोला ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। सतगुरु गरीब निवाज ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला समर्थ समर्थ गुरु प्रतख गुरु अकथ गुरु चवर छत्र तख दे मालिक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रसमान रहे गुरु प्यारिओ। गुर शब्द विचार आप जी दे सन्मुख भेंट करा। सब तो पहला गुरदेव दी फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। ए बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। लोक जाने ए गीत है ए तो ब्रह्म विचार। ज्यों कांशी उपदेश होए मानस मरती बार। बाणी दी विचार नूं असीं रोज़ जपजी साहिब विच दृढ़ करदे हां। आसा की वार विच दृढ़ करदे हां पर करदे कोई नहीं। पढ़ जरूर असीं लैंदे हां। सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार नदरी करम लंघाए पार। ये बाणी दी विचार जरूरी इतनी है पर करण एक सुना के ते अगे कथा नूं तोरीए। तोतियां दा झुंड सी एक पेड़ उपर रहिंदे सन। बड़ा सोहना उन्हां दा हसदा खेडदा परिवार सी। रल मिल के आप रहिंदे सन। शामी शिकारी एक आउंदा सी उन्हां दे पेड़ कोल दाणे पाउंदा सी। सारे ही तोते दाणियां नूं टुट पैंदे सन। वो जाल पा के काफ़ी सारिਆਂ ਨੂੰ फसा के तुर ਜਾਂਦਾ ਸੀ। दिनों दिन जदों इस तरह होण लगा तोतियां दी गिणती बड़ी घटण लगी। जदों गिणती उन्हां दी घटण लगी तो बहुत घट गिणती विच हो गए। फिकर उन्होंने पै गया असी तो खत्म हो जाएंगे। रोज़ ही शिकारी लैंदा गया तो असी खत्म हो जाना। विਉਂਤ उन्होंने बनाई सियाणे तोते कोल चले गए कि असी सियाणा तू बजुर्ग तोता है जे तू दस पावें तो असी शायद बच सकते हाँ। शायद साडा बचाव हो सकता है। तोता वाकई सियाणा बड़ा सी। उसने कहा देखो मेरे प्यारे तोतियों सानू वाहिगुरु ने एक काम बड़ा सोहना सिखा दिता है। वो की रटन दा। तोता रटन तोता रटन सानू काम बड़ा वाहिगुरु ने सोहना सिखा दिता है। रटन दा तुहानू एक मंत्र मैं दे दिंदा
ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਟ ਲਓ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਤੋਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਰਟਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇੜ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਰਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰ ਰਟੀ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਰਟੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫਸਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਚੁਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਖਾਈ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਾਲ ਤੇ ਫਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਤਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਸ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲਈ। ਮੰਤਰ ਐਸਾ ਬੇਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਤੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਫਸਣ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਤਰ ਕੇਵਲ ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਫਸਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜੀ ਜਾਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਆਵੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਂਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਖ ਦੇਗੀ? ਕਦਾਪि ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵਾਂਗੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਅਗੰਮੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗੰਮੀ ਸੁਖ ਲਏ। ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
100 करके शहीद होए सिख बंदा सिंह बहादुर नाल एक दिन विच आनंद गया किते भी नहीं। लड़ पे सन इसलिए नहीं कि पहले इसनों शहीद करो, पहले उसनों शहीद करो, लड़ पे सन पहले मैनू शहीद करो। आनंद जांदा कोई नहीं। अज दे शब्द दी विचार विच धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सानू यही समझाउणगे कि तैनू आनंद किवें मिलेगा। सो आओ गुर शब्द दी विचार आप जी दे सन्मुख भेंट करां। श्री राग दा 13वां शब्द, श्री राग महल पहला। इस शब्द दी साढ़े कोल टाइटल है, हैडिंग है, सिरलेख है, श्री राग महल पहला। श्री राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच 31 रागां विचों सिरमौर राग, रागां विच श्री राग है। सब तो प्रथम राग गुरु नानक साहब अंकित कर देन, श्री राग महला पहला, घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मोती ता मंदिर उसरै, रत्नी ता होए जड़ाओ। इधरों शब्द शुरू होंगे श्री राग दे अंग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन अंग 14, 1 तो 13 नितनेम दीयां बाणियां हन। 14 तो लैके अगे रागमई बाणियां शुरू होंदियां ते असीं 13वें शब्द तक अज पहुंचे हाँ। श्री राग महल पहला, ये शब्द गुरु नानक पातशाह ने श्री राग विच उच्चारण किया है। महल पहला तो भाव महल का मतलब टिकाणा, रहन दी थां, रहन का बहुत वड्डा एक घर जिसनों असीं रोज़ सोहले विच पढ़ते हाँ। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मनै बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे, बोहर ना होएगो फेरा। महल रहन दी थां, ये किस दे रहन दी थां है? ये उस जोत दे रहन दी थां है जिहड़ी जोत ने सब तो पहला गुरु नानक साहब विच टिकाणा कीता। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। श्री राग महल पहला, इसनूं गुरु साहब महला भी लिखणगे। कई बार तनासरी महला पंजवां, श्री राग महला पहला, महला तीजा, महला चौथा। इस तरह 6 गुरु साहब की बाणी सारे गुरु साहिबाना के नाम के अगे जां तां महल जां महला लग्या। महल का मतलब, महला का मतलब रहन की थां, टिकण की थां, अकाल पुरख की उस जोत के टिकण की थां जिसने 10 जामे बदले सन, पर जोत इको ही सी। जोत ओहा जुगत साए सै कायम फेर पलटिया। गुरुदेव फरमा रहे हन, श्री राग महल पहला, तात मिलै फुन तात को, सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गैबरा, सच्चा रंग चढ़ाओ। सो शब्द की विचार शुरू करने तो पहला असी रहाओ की पंक्ति वल झात मार लीए। रहाओ एक शब्द का सेंट्रल आइडिया हुंदा है। रहाओ तो भाव हुंदा है रहो, टिको, रुको, ठहरो, समझो, विचारो। इस शब्द की भूमिका है, इसनों समझ लोगे शब्द के बाकी पदे सौखे समझ आ जाएंगे। रहाओ की पंक्ति गुरुदेव फरमा रहे हैं, भाई रे संत जना की रेणा, संत सभा गुर पाइयै, मुकत पदार्थ तेना। भाई रे संत जना की रेण। गुरु साहब फरमाउणगे, हे मेरे भाई, ऐ मेरे प्यारे भरा, जे तू वाहिगुरु दा आनंद मानना है तो एक काम कर लै कि गुरसिखां दी धूड़ बन जा, संतां दे पैरां दी खाक बन जा, मिट्टी हो जा, रेत हो जा। गुरबाणी विच रेण नूं चरण धूड़, माटी, मिट्टी, खाक, रेत करके गुरु साहब ने सम्मान दिता है। सब तो उच्चा साडे तन विच है सिर, ते सब तो नीवें ने पैर। सिर दा अदब बड़ा है ते पैरां दा तिरस्कार बड़ा है।
पर फरीद जी कहते हैं पैरों तो भी थले कुछ है, उसकी भी निंदा नहीं हो सकती। पैरों तो थले की है मिट्टी खाक, फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड़ ना कोए, इसकी निंदा ना करो। क्यों? जीवदियां पैरां तले मोया उपर होए। जदों तक तू जिਉਂਦਾ है उदों तक तेरे पैरां थले ते जरूर है, तू मर जाएगा तेरा तन भी खाक हो जाएगा, इसकी निंदा ना कर। गुरबाणी दे अगम्मी बोल तो इत्थे तक सानू ढारस देणगे। गुरु अर्जन साहब कहणगे कि जे मेरे तन ते मन नू सब तो वड्डा सुख है ना वाहिगुरू, ते वाहिगुरू मैनू संतां दी खाक बना दे। रोज सोहले साहिब विच पढ़ांगे, अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै, यह सुख मांगै। यही सुख मंगदा की मोको कर संतन की तूरे। एक हुक्मनामा आम तौर पर असी सरवण करते हैं, तनासरी महला पंजवां, जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। इस दे आखिरी पंक्तियां कदी ध्यान नाल पढ़िए ते खाक दी इस रेण दी अहमियत समझ आ जाएगी। जन के चरण वसै मेरे हियर है, संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध। धूड़ चाहिए क्यों है? नानक कै सुख यही, यही मेरा सुख है। गुरु नानक साहब तो हद कर देंगे, इस खाक की उस्तत करते हुए कहेंगे सब तो वड्डा दान ही मेरे लिए चरण धूड़ है। दान महंडा तली खाक जे मिले तो मस्तक लाई। गुरु अर्जन देव जी कह देंगे खाक ही मेरे लिए पवित्र है, यही मेरे लिए पवित्र स्नान है। माग मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान। ये खाक इतनी पवित्र है। ये खाक है कि ये रेण है कि ते रेण हो जाना की है। जे ये समझ लवांगे जीवन विच आनंद ही आनंद है। ये रेण खाक धूड़ ते एक शब्द हो रहा है सिख। जे ये शब्दों का मैं अर्थ पढ़ लवां ना तो समानार्थक अर्थ हो जाएंगे। समानार्थक हिंदी में असीं कह देंगे पर्यायवाची, अंग्रेजी में कह देंगे सिनोनिम्स। ये बिल्कुल समानार्थक अर्थ ने। पता है किवें? खाक नूं हंकार किसी चीज़ का नहीं हो सकता। किस चीज़ का माण करेगी? पैरों के थले है, माण कोई नहीं कर सकती। गुरु नानक साहब ने जदों धर्म की स्थापना की, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। बड़े सारे गुरु साहब को विचार आए, गुरु साहब इस धर्म का नाम की रखोगे? तो गुरु साहब को विचार जिहड़े आए सन, उन्हां विचों एक विचार से गुरु साहब नाम रख दो भिक्षु। भिक्षु भिखारी, भिखारी नूं किसी चीज़ का माण नहीं। आप कहते हो ना, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्यां स्यों क्या रीस। जे इतना ही अपने आप को नीवा जताउंदे हो तो भिक्षु नाम रख दो, भिखारी अपने पंथ का नाम रख दो। बौद्धियां ने भी नाम भिक्षु रखा है। माण नहीं कर सकते भिक्षु किसी चीज़ का। गुरु साहब ने बड़ा सोचा तो फिर कहा गल तो तुहाडी ठीक है, भिखारी माण तो किसी चीज़ का नहीं कर सकता, पर भिखारी विच एक चीज़ की कमी है। जिहड़ा पंथ असी चलावांगे कमी कोई नहीं होनी चाहिए उस पंथ विच। कमी किहड़ी है? भिक्षु का हाथ हमेशा सारिਆਂ सामने अड्डिया रहेगा, हमेशा अड्डिया रहेगा। वो किसी को कोई देण दे काबिल नहीं होगा, देण दे समर्थ नहीं होगा। पंथ मेरा ऐसा होगा, माण तो किसी चीज़ का नहीं करेगा, लोड़ पवेगी तो किसी तो मंग भी लवेगा, तो लोड़ पवेगी यथाशक्त किसी को दे भी देगा, पर माण किसी चीज़ का नहीं कर सकता। गुरुदेव फिर नाम की रखोगे? इस पंथ का मैं नाम रखदा सिख। सिख मरदे दम तक सिख, आखिरी श्वास तक सिख। ना तो कदे किसी चीज़ का माण कर सके कि मैं सिख लिया है, मैं सिख लिया है। पैदा होया बच्चा साडे घर असीं कहांगे सिख दे घर जन्मिया सिख। साडे ही घर तो पुरानी रुखसत कर जाए तो असीं कह दांगे पुरानी रुखसत होया, ये भी सिख, ये भी सिख। ना तो सिख किसी चीज़ का मान कर सकता है, ना ही ए रेण भाई रे संत जना की रेण।
ये खाक, ये मिट्टी भी, ये पैरां दी धूड़ भी किसी चीज़ का माण नहीं कर सकती। जब किसी चीज़ का माण नहीं ना कर सकती तो इसका मालिक इसनूं जिथे लैके जाएगा उत्थे ही चलेगी। हुण ये एक दे पिछे लग जाएगी। ये दो कंसैप्ट ने अज दे, एक कि पैरां दी खाक हो जाना संतां दी, जने खने दी नहीं। सच्चे गुरु दे पैरां दी खाक हो जाए तो तैनूं आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख मिल जाएगा। क्यों? रेण नूं किसी चीज़ का माण नहीं। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है। इस संगत विच, इस गुरु की संत सभा विच तैनूं मिलेगा कौन? संत सभा गुर पाई है। तैनूं सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। ये सच्चा गुरु करेगा कि मुकत पदार्थ धेण, धेण हुंदी है गां। मैं हैरान हुंदा, सानू मौका एक चाहिदा हुंदा किसी दे धर्म की निंदा करन दा। देखो जी, हिंदू कर्म कांडी हन, नंगे पैर जाते हैं, शिवलिंग उपर दुध चढ़ाते हैं, गां नूं पूज रहे हैं, बनस्पति नूं पूज रहे हैं। सानू निंदा करन दा मौका चाहिदा है। देखो जी, मुसलमान ने एक पासे वल मनते हैं, दूसरे पासे खुदा दिखता नहीं। जिहाद के नाम पर इन्होंने वो तबाही चुकी है जिसकी कहण की हद कोई नहीं। देखो जी, ईसाई हैं, ये मूर्ति पूजक हैं, ये ईसा की मूर्ति नूं मनते हैं। केवल एक शहीद होया धर्म से निंदा करना मैं पिछे हटदा नहीं। पर कमाल ने गुरु नानक साहब की फिलॉसफी किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते। और हद तो इत्थे हो जाती है, जेड़े धर्म कोल जाते हैं ना, उन्हों के कर्म कांड तो ही उन्होंने लैसन दे देंगे हैं। हिंदुओं कोल गए, ये नहीं क्या कि गां विच रब नहीं है, गां नूं मनदे हो मूर्खो, इस तरह नहीं क्या। कहते गां नूं रब मनो, गायें हमारी माता है। वाकई तुहाडी माता नहीं, मेरी भी गां माता है। पर यह गां है कौन? ये गां गुरु नूं बना लो। संत सभा गुर पाई है, मुकत पदार्थ धेण, ये गुरु ही मेरी काम तेन है, ये गुरु ही मेरा पार जात है। संत सभा गुर पाई है, ये गुरु मेरी ऐसी गां है ਜਿਹੜੀ मैंने सिर्फ दुध नहीं दिंदी, ये ऐसे पदार्थ दिंदी है जिस नाल मेरे जन्म मरण दी, मेरे विकारां दी मुक्ति खलासी हो जाती है। मुकत पदार्थ धेण, ये एक गुरु दे पिछे लग्या मेरे सारे विकार नाश हो जाते हैं। क्योंकि मैं संतां दे कदमां दी खाक हो चुकिया, राख हो चुकिया, धूड़ हो चुकिया, ते हंकार मेरे विच है कोई नहीं। ये शब्द का सेंट्रल आइडिया गुरुदेव दस रहे हैं। भाई रे संत जना की रेण, प्यारे गुरसिखां दे पैरां दी खाक हो जा। गुरसिखां दी संगत विच तैनूं गुरु मिल पेगा। गुरु दे मिलन नाल तेरे विकारां दी खलासी हो जाएगी। विकारां दी खलासी होंदे तो आनंद ही आनंद होए, सदा आनंद विच रवेगा। ये आनंद फिर नहीं जाएगा। पहली पंक्ति विच गुरुदेव फरमान कर रहे हैं, धात मिलै फुन धात को सिफती सिफत समाए। ते गुरु नूं मिलना किवें है? हुण गुरु साहब तरीके दसणगे। मुकत होना किवें है? गुरु साहब तरीके दसणगे। ते मुक्ति दे राह विच औंकड़ां किहड़ियां है? गुरु साहब वो भी दसणगे, उस तों सुचेत करनगे। धात मिलै फुन धात को सिफती सिफत समाए। प्रभु दे गुणां दी विचार, नित दी विचार, नितनेम विच कीती विचार जदों गुरु साहब चौथी पौड़ी विच पुछ लैंदे ना, जे सारा कुछ ही तेरा दिता है, जे दातां सारियां ही तेरियां दित्तियां, फिर मैं तेरी विचार विच की कवां कि तू खुश हो जावें, मैनू तू दिस पवें, तेरा दरबार दे दर्शन मैनू हो सकण। गुरु साहब कहंदे ना, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार, आखें मंगें दे दे, दात करे दातार। फेर के अगे रखी है, सवाल चुकते हैं, फिर हुण मैं रखांगी तेरे अगे, फेर के अगे रखी है। जित दिसे दरबार, तेरा घर मैनू दिस पवे, ऐसा रखा कि मूहों के बोलन बोली है। अपने मूहों ऐसी केड़ी शब्दावली वरता जित सुन धरे प्यार, कि तू मैनू प्यार करना शुरू कर दवें। जवाब भी नाल ही दिंदे न, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। उठ अमृत वेले, जाग लौडे पैर, ते गुरु दे शब्द दी विचार कर। उस दे शब्द विचों तैनूं ओ खजाने मिलणगे। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। ए तन अखुट ना निखुटै ना जाए।
ऐसे पदार्थ मिलणगे ਜਿਹੜੇ कदी नाश नहीं हो सकणगे। ਤੇ ਇਹ पदार्थ मिलणगे किवें? गुरु ਦੇ शब्द ਦੀ विचार करके तो उसकी सिफतां ਦੇ ਵਿੱਚ ही समा जावेगा। तेरे विच दुविज नहीं रह जाएगी। जदों तक दो चीज़ां हैं, जदों तक मैं कुछ होर हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब कुछ होर ने, रब कुछ होर है, हुणे असीं तीन चीज़ां हाँ। श्रोता कोई होर है, सुनाउण वाला कोई होर है, ते मंजिल कोई होर है। ये तिन्नां नूं एक होना पवेगा तां जाके कुछ खेड बन सकती है। भगत साहब लिखणगे, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। जदों तक मेरे विच मैं सी उदों तक ते तू मेरे कोल कोई नहीं सी। जिस दिन दी मेरी मैं मुक गई है हुण तू ही तू है। हुण मैनूं पुछ लवें कि मैं कौन हाँ, ते तू तू करता, तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ। हुण मैं कुछ हाँ ही नहीं, हाँ ही नहीं। किसी संतां कोल जग्यासू एक चला गया, पूछ लिया जी सचखंड जाण दा सौखा तरीका दसोगे? सचखंड असीं पहुँचना किवें पहुँच सकते हैं? बड़े विद्वान ते बड़े महापुरुष सनो संत खिड़खिड़ा के हस पे, कहते ये सही है, 4 पड़ाव तू लंघ आए, सीधी छाल मारी सचखंड नूं। कहता केड़े 4 पड़ाव में लंघ आया? कहते 4 पड़ाव तू रोज़ जपजी साहिब विच पढ़ रहे हैं, धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड, सचखंड। तू नहीं पूछया धर्म खंड विच मैं किवें दाखिल होवां, ज्ञान खंड नूं किवें हासिल करां, श्रम खंड कर्म खंड की प्राप्ति किवें होवेगी, सीधी छाल सचखंड नूं। कहते नहीं जी तुसीं दसो सचखंड विच की है, मैं उत्थे ही जाना है। कहते सचखंड नूं सुन लेगा औखा बड़ा हो जाएगा, सौखा जा नहीं सकेगा। कहता तुसीं दसण दा काम करो, जाना ना जाना मेरा काम है। सचखंड विच है कि बड़े कमाल दे उस संत जना दे बोल मैं तुहाडे अगे रखा, मेरे दिल नूं बड़े टुंबे। वो संत जी कहते हैं सचखंड विच की है? सचखंड विच केवल तू ही तू है, उत्थे मैं नहीं हाँ। जदों तू सचखंड विच पहुंचेगा उत्थे मैं नहीं होवेगा, उत्थे केवल तू ही तू होवेगा। पता है वो जग्यासू की कहता है? कहता गोला लगे ऐसे सचखंड नूं जिथे मैं ही नहीं होवांगा। करना की है ऐसे सचखंड नूं मैं जिथे वाहिगुरू ही होवे, मैं ही ना होवा। ते असीं रोज़ जपजी साहिब विच पढ़ रहे हैं सचखंड वसै निरंकार, उत्थे केवल निरंकार है। पर इसका मतलब ये नहीं उत्थे मैं नहीं हाँ, उत्थे मैं हाँ पर मेरी होमै नहीं है। ये बूंद हिमालय तो निकली है, ये ग्लेशियर तो, ये बर्फ के टिल्ले तो निकली है पिघल के। ये कदी आके झरना बनी, झरने तो नदी बनी, नदी तो ये बहुत वड्डा जदों रूप लै लेके ये अपने रस्ते नूं तुरदी हुई समुंदर भी चली जाती है। हुण भावें लखां नदियां आईयां होण हिमालय तो, वक्खो वखरे नाम लैके आईयां होण हिमालय तो, गंगा है, जमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये एक बार समुंदर विच रल गईयां। असीं नहीं दस पावांगे केड़ी गंगा है, केड़ी जमुना है, केड़ी गोदावरी है, पर ये विच ठलाया नहीं जा सकता कि गंगा इस विच नहीं, गंगा है। पर हुण गंगा कौन ते समुंदर कौन ये नहीं दसिया जा सकता। धात मिलै फन धात को सिफती सिफत समाए। कबीर साहब कह रहे हैं मैं जप जप के राम नू, जप जप के राम नू इतना जप लिया कि हुण राम कौन है ते कबीर कौन है तुसीं पछाण ही नहीं सकते। राम कबीरा एक भये है, कोई ना सकै पछाणी। क्यों? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पानी। ये मैं इस तरह वाहिगुरू विच समा जावांगा जिवें किसी सोने के गहने नूं मैं ढाल के सोने की इट बना देवां। ते हुण मैं नहीं दस सकदा गहने विच पिया सोना केड़ा सी ते इट विच पिया सोना केड़ा है। धात मिलै फन धात को। इस तरह वाहिगुरू ते उसका सिख एकमिक हो जाणगे। गुरुदेव फरमा रहे हैं लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। जदों वाहिगुरू नूं कोई प्राप्त कर लवेगा, वाहिगुरू दे विच लीन हो जाएगा, उसके चेहरे विच लालियां आ जाणगियां। जिसनों गुरबाणी फरमाउण करती है गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट थिया, सोई सुहावा थान जिथे प्यारा नानक जी तू उठिया।
रोज शब्द पढ़ते हैं, जिथे जाए वह है मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। उसके चेहरे ते लालियां और पक्का लाल रंग, गहबरा भाव गूढ़ा लाल रंग उसके तन और मन ते चढ़ जाएगा। लालियां तो भाव हुंदा जदों कोई बहुता खुश होवे ना, असीं पुछ लैंदे आ की गल है, चेहरे ते बड़ी लालियां छाईयां। ते जदों सदा आनंद विच होवे उसके चेहरे ते सदा दियां लालियां छा जांदियां। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, क्योंकि अज इसनूं सच दे रंग दी पाण चढ़ गई है। पर हुणे सानू किहड़े रंग दी पाण चढ़ी है? ए तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लब रंग आए। जदों लब दी पाण चढ़ी है उदों तक तां मेरा कंत न पावै चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजा जाए। गुरुदेव फरमा रहे हन, सच मिलै संतोखियां हर जप एकै पाए। वाहिगुरु नूं मिलन लई एक शर्त उन्होंने दस दी, वो शर्त एक ही है, सच मिलै। ये सच्चा वाहिगुरु मिलेगा किन्हां नूं? संतोखियां। ये संतोखी महापुरखां नूं, संतोखी सिखां नूं, संतोखी जग्यासुआं नूं ही वाहिगुरु की प्राप्ति हो सकती है। संतोख आवेगा किवें? हर जप एक पाए, उस सच्चे गुरु दी, उस सच्चे वाहिगुरु दी सच्चे मन नाल, प्यार भरी उस्तत नाल वो मैनू मिल पवेगा। साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सुकृत ट्रस्ट की किताब मैं पढ़ रहा सी, प्रेम की परिभाषा बा कमाल परिभाषा मैंने उस चो लभी, तुहाडे अगे रख देवां। बड़ी स्टेजां तो मैं परिभाषा सुनाई। प्रेम नूं लिखते हैं पप्पा पैरा रारा उपर लां ते मम्मा, असीं इवें ही लिखते हैं प्रेम। पप्पा दे पैर ते रारा, पप्पे नूं लां ते मम्मा प्रेम। वो पहला इस तरह ही लिखते हैं प्रेम। दूसरी बार वो प्रेम नूं रारा पैरों हटा देंदे ने, लां उपरों हटा देंदे ने, पूरा राह पा देंदे ने, विच पूरा राह ते रारे नूं लां। हुण की बन गया? प्रेम तो बन गया प्रेम। रारा थल्लों हट गया, पूरा रारा पै गया, प्रेम। हुण तीसरे स्टैप विच जो लिखते हैं बा कमाल। पहले लिखते हैं प्रेम। ये प्रेम है कि असी कह देंगे वाहिगुरु नाल प्रेम करो, प्रेम नूं समझिए तो सही है कि प्रेम वो है पप्पा पैरा रारा ला मम्मा प्रेम। प्रेम वो है पप्पा रारा रारे नूं ला ते मम्मा प्रेम। तीसरे स्टैप विचों लिखते हैं पप्पा रारा रारे नूं ला, बस। उस तो बाद अडरा करके शब्द लिख देते हैं मम्मा। परे मैं, परे मैं। प्रेम की है जिथे मैं होवे ही ना, केवल तू, केवल तू। परे मैं परे हो जावां, प्रेम ओ है। मैं फिर कह दवां, जदों तक मेरे विच मेरी मैं है उदों तक मेरे विच तेरा तू नहीं वस सकता। जब हम होते तब तू ना ही। जिस दिन उसका तू वस गया उस दिन मेरे विच मेरी मैं भी नहीं वस सकती। अब तू ही मैं ना ही। सूरज किरण मिलाए, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। गुरुदेव फरमा रहे संतोख विच रह के, वाहिगुरु नाल सच्चा प्यार करके, तू करके, अपनी हौमै त्याग के तू वाहिगुरु नूं मिल सकदा है। संतोख विच रह के क्यों कहा? समा बड़ा सीमित। संतोख विच रह के क्यों क्या? क्योंकि बिना संतोख नहीं को राजै। संतोख तो बिना अज तक ते कोई नहीं रजिया, कोई भी नहीं। असी सोच लईए साडी लालसा की है। मेरी लालसा होवे नौकरी पेशा, मैं किते वजों अध्यापक हाँ, लालसा मेरी बड़ी है कि घट्टों घट मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपया होवे। लालसा है मेरी 2 लाख रुपया महीना होवे, है टीचर्स दी है। मेरी प्रमोशन होए, मैं भी चाहता मेरी भी होवे सी। 2 लाख मेरी हो जाए तनख्वाह, तो मैं सोचा कि मेरी हुण लालसा मुक जाएगी, ये लालसा अगे चली जाएगी, ये लालसा 20 लाख ते चली जाएगी। तो हो जाए तनख्वाह 20 लाख ते लालसा मुक जाएगी, 20 करोड़ ते भी चली जाएगी। तृष्णा बिरले ही की बूझी है, कोट जोरे लाख करोड़े, मन न हो रे परे परे ही लूझी है। कितनी एक लालसा वध सकती है। गुरु साहब कहते सारी सृष्टि का राजा तू बन जावे,
ਤਾਂ ਵੀ तू दुखी रहेगा। तेरी लालसा नहीं मुक सकती। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, सुख ना ही बहुते तन खाटै, सुख ना ही पेखै नृत नाटै, सुख ना ही बहु देश कमाए, ते सुख आवेगा किवें सरब सुखा हर हर गुण गाए। गुरु साहब कह रहे हैं संतोख विच रह के वाहिगुरु नाल एक सारता दा सच्चे दिलों प्यार करके तो उसनों हासिल हो सकता है। भाई रे संत जना की रेण, हो जा संतां दे कदमां दी खाक, संत सभा गुर पाईऐ, संतां दी सभा विच सच्चा गुरु मिल पाएगा। मुकत पदारथ धेन, वो ऐसी काम देन है जिहड़ी मुक्ति दा वो पदार्थ देवेगी कि विकारां दा नाश हो जाएगा। अगली पंक्ति विच गुरुदेव रहाओ तो बाद फरमान कर रहे हैं। रहाओ मैं फिर कह दवा, रहाओ दे आखिरी अर्थ ने रहो, टिको, रुको, ठहरो, समझो, विचारो ते हुण मजे लो, हुण आनंद लो। रहाओ है सेंट्रल आइडिया, शब्द का जिस्ट है। सो असी समझिया भाई रे संत जना की रेण, रेण हो जा। अगली पंक्ति विच गुरुदेव फरमा रहे हैं, ऊंचो थान सुहावना, ऊपर महल मुरार। वाहिगुरु तेरा घर बड़ा उच्चा है, तेरा दर बड़ा उच्चा है, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो। पर कमाल की गल पता की है, पढ़ के श्री राग का शब्द मैं तुहानू कह दिता, घर बड़ा उच्चा है, घर बड़ा उच्चा है। सुन के तुसी किसी नू कह दिता वाहिगुरु का घर बड़ा उच्चा है, घर बड़ा उच्चा है। सुन के तुहाडे लड़के ने भी अपने दोस्त नू कह दिता वाहिगुरु का घर बड़ा उच्चा है। पर कमाल की गल पता की है, ना तुहाडे लड़के ने घर वेख्या, ना उसका घर तुसी वेख्या, ना ही उसका घर जिस प्रचारक ने तुहानू सुनाया उसने वेख्या, ना ही जड़े डेरेदार बने उन्होंने वेख्या, ना ही जड़े झूठे संत बने उन्होंने वेख्या। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी कहने की जरूरत भी नहीं सी जे गुरु नानक साहब ना कहते। रहरास विच रोज़ पढ़ोगे, घर तो बड़ा उच्चा है पर सारे ही सुन के कह रहे हैं, आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब को। सारे कह रहे हैं बड़ा उच्चा, बड़ा उच्चा। पुछ लवा देखा, देखा कोई नहीं। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सरब समान। बड़ा उच्चा घर है, बड़ा उच्चा, किन्ना उच्चा देखा मैं कोई नहीं। पर गुरु नानक साहब गवाही भर रहे हैं क्योंकि उन्होंने घर वेख्या है। शब्द की अखीरली पंक्ति में असीं देखांगे, गुरु ने घर वेख्या है, दर वेख्या है, वो वाहिगुरु नूं हाज़र नाज़र वेख चुका है। नहीं तो गुरबाणी ना कहंदी, दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन और ना देखा। मैं वेख रहा हाँ, की वेख रहा हाँ, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। मैं वेख रहा हाँ घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहियो पुकार। मैं वेख रहा हाँ कि जाहिर जहूर है, कि हाजिर हजूर है। मैं वेख रहा हाँ वाहिगुरु, पर मैं दस किसी नूं नहीं सकता कि तू दिखदा किस तरह है। गुरु नानक साहब ने किसी ने पूछ लिया, मतलब ही बड़े हो तुसी। मेरे वर्गे चलाक सिख, लंबी जबाना वाले सिख, अपनी अकल नूं अगे रख के करन वाले सिख गल्लां गुरु नानक साहब दे वक्त भी है सन। कह देंगे मतलब ही बड़े हो। मुस्कुरा के गुरुदेव पूछ लेंदे क्यों मतलब ही हाँ, कहते वाहिगुरू नूं तुसीं वेख लिया, उसका घर भी वेख लिया, दर भी वेख लिया, दर्शन भी उसदे कर लेन, दसदे कोई नहीं। गुरु नानक साहब कहते नहीं दसांगा, जे हों जाना आखा नाही, नहीं दसता मैं। मतलब ही हो, कहते नहीं मतलब ही कोई नहीं, दस ही नहीं पा रहा, दस ही नहीं सकता, मेरे बोलों में पूरा ही नहीं आ रहा। जे हों जाना आखा नाही, क्यों कहना कथन न जाई, नहीं दस सकता। कमाल दी गल।
भाई साहब ਨੂੰ मैं देख लवां, मैं दस सकदा भाई साहब ने काले रंग की दस्तार सजाई है, गले विच हजूरिया है, गात्रे किरपान है, कुर्ता पजामा पाया, ताबिया बैठे, किसी ने भी दस सकदा मैं, वेख्या भाई साहब ने दस दिता। संगत विच बैठे जितने सत्संगी ने सारिਆਂ बारे मैं बाहर जाके दस सकदा, अपने हथ पैर वेखे दस सकदा, अपना घर बार वेख्या, किसी का घर बार वेख्या दस सकदा, तुसी क्यों नहीं दस सकते? गुरु साहब कहते हैं गल मेरी एक सुन, स्वादला भोजन बड़ा होवे, बुरकी तेरे मूँह विच मैं तुन दिती होवे, मूँह तेरा पूरा भर गया होवे रस नाल, मैं तेनों कहां हुणे दस किस तरह का स्वाद, दस सकेगा? कहंदा जी मैं जबान तो उस वक्त तक गूंगा जदों तक स्वाद पूरा नहीं आ जाता, जब तक बुरकी पूरी अंदर नहीं जा जाती मैं नहीं दस सकता। कहते यकीन करी वाहिगुरू एडी वड्डी बुरकी है, मैं खाई ते जा रहा, रस आई ते जा रहा है, जिस दिन पूरा स्वाद आ जाएगा मैं दस देवांगा किस तरह, नहीं आ सकता पूरा स्वाद। एक कुज्जे विच समुंदर किवें भर सकते हैं? एक गुरसिख छोटा वड्डा हो सकता है, एक भगत छोटा वड्डा हो सकता है, ना गुरु छोटा वड्डा हो सकता है, ना अकाल पुरख छोटा वड्डा हो सकता है। भगत छोटा वड्डा किवें हो सकता है? ये भगत दो भगत ने 100 साल तक मन लिए इन्होंने जीवना जीना है, एक ने 5 साल में वाहिगुरू नूं पा लिया, एक ने 50 साल में जाके पाया। जिसने 5 साल में वाहिगुरू नूं पा लिया, ये अगले 95 साल तक वाहिगुरू का रस माणदा जाएगा, और हैरान हो जाएंगे सुन के, ये अगले 95 साल तक इसका रस वधदा ही जाएगा। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत न काट, ये कटेगा नहीं, ये वधदा ही जाएगा। तोट खावें खर्चें रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाए, ये रस वधदा ही जाएगा, वधदा ही जाएगा। 95 साल का इसका रस ते 50 साल का किसी भगत का रस, इस 95 साल के भगत विच कुछ गहराई ज़्यादा होगी, कुछ प्यार ज़्यादा होगा, कुछ बोल ज़्यादा अगम्य होणगे, कुछ पैर वध क्रांतिकारी होणगे। ये 50 साल के भगत विच भी वाहिगुरू के दीदार ताईं भी कर चुका है, रस इस विच भी होगा, पर उस तो एक्सपीरियंस क्योंकि घट है, इसमें से छोटा भगत कह सकते हैं। पर एक बार कोई गुरु की पदवी ते पहुंच जाए तो फिर वो ना गुरु छोटा ना अकाल पुरख छोटा। क्यों? नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई। ये नानक और निरंजन में फर्क कोई नहीं गया। सो गुरु साहब कह रहे हैं उसका घर बड़ा उच्चा है, दर बड़ा उच्चा है, मैं वेख लिया, तुहानू दस रहा, वेखोगे तो आनंदित हो जाओगे। इतना उच्चा तुसी भी हो जाओगे, पर इतना उच्चा होगे किवें? एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाना है। सो इसनू जानन तो बाद गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऊपर महल मुरार, उसका महल बड़ा उच्चा है, वो मुरार है। मुरार दे अर्थ की ने? मुर राक्षस सी त्रेते युग दा, और मारन वाला वैरी श्री कृष्ण ने मुर राक्षस नूं मारिया ते नाम पै गया मुरार। जिमें दामोदर, मुरार, श्री कृष्ण, विठल, हरि, राम, अल्लाह, खुदा, ये सारे वाहिगुरू के करम नाम ने। इस तरह एक नाम है मुरार। मुरार मुर राक्षस नूं मारन वाला। त्रेतै तैम असी शब्द पढ़ते हैं, त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। एक कृष्ण मुरार ने, वाहिगुरू तू ही मेरे लिए मुरार है, तेरा थान तेरा घर बहुत उच्चा है, पर शर्त रख दी घर नूं वेखांगा किवें? सच करनी दे पाईए, दर घर महल प्यार। दो शर्तां रख दित्तियां, अपना आचरण उच्चा कर लै, अपने दिल विच प्यार बिठा लै, वाहिगुरू दा घर तैनूं दिस पवेगा, वाहिगुरू तैनूं दिस पवेगा। हुण गुरबाणी दी विचार इतनी जरूरी है। अज असी इस शब्द विच पढ़ रहे हैं ना कि आचरण उच्चा कर लै, जे मैं कह देवां असी रोज़ पढ़ रहे हैं उच्चे आचरण की गल, जपजी साहिब विच पढ़ रहे हैं, पर जे सानूं नहीं पता ना तो मूर्खता ही साडी इत्थे है। कहते रहे हैं सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार, कहते रहे हैं बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, पर विचार कर कोई नहीं रहे। तोतियां दे उसे झुंड का हाल है, मंत्र पढ़ी भी जावांगे ठगी भी करी जावांगे, बाणी पढ़ी भी जावांगे चोरी भी करी जावांगे, बाणी पढ़ के भी
मैं देखा लोग गोलकां नूं चिमड़े। बाणी पढ़ते हुए कह देना साबत सूरत दस्तार सिरा, इतिहासिक गुरुद्वारे में पग्गां लथदियां असीं सुणदे हां। बाणी पढ़ते हुए मैं कह दवा बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत में आई। सतसंगत विच बैठ के गालां दिंदे मैं मैंबर सुने हैं। बाणी पढ़ के ये हाल है। ये वो है मंत्र मैं पढ़ी जा रहा, दाना भी चुगी जा रहा। असी रोज उच्चे आचरण और प्रेम की गल करते हैं। मुंदा संतोख श्रमपत झोली, ध्यान की करें विभूत। अगे पढ़न का तरीका सीख लीए। एक पंक्ति केवल टूक मात्र। खिंथा काल असी पढ़ांगे, असी इसनों इस तरह पढ़ते हैं। खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। इस तरह नहीं है ठहराव। गुरबाणी नूं बा अदब पढ़िए, बेअदब ना होइए। खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। अर्थ समझांगे, समझ आ जाएगी बाणी कहना की चाह रही है। गुरुदेव फरमा रहे हैं उच्चा आचरण सच करनी दे पाई है। उसनों मिल पवेगा उच्चे आचरण करके। दर घर महल प्यार, उसदे सच्चे दर, उसदे सच्चे घर, उसदे सच्चे महल नाल प्यार करके। प्रेम वो है जिथे मैं नहीं, परे मैं। गुरमुख मन समझाइए, आत्म राम विचार। गुरुदेव कह रहे हैं उच्चा आचरण कह ते मैं दिता है, बनाना बड़ा औखा है। हैरान हो जाओगे। 10,000 साल मच्छंदर नाथ जोगी ने तपस्या की सी पानी दे अंदर रह के। 10,000 साल। पता है नाम मच्छंदर नाथ क्यों पिया सी? 10,000 साल इसने मन काबू किया पानी दे अंदर रह के कि मैं धरती ते निकला ही ना, औरत मैनू दिखे ही कोई ना, मन मेरा डोलेगा ही नहीं, टिकाव विच आ जाएगा, आचरण उच्चा हो जाएगा, वाहिगुरू मिल जाएगा। 10,000 साल जदों इसनों लग्या कि हुण मन अडोल हो चुका है, इसने समंदर दे अंदर अखां खोलियां। 2 मछलियां इसनों दिखियां, एक नर ते एक मादा। दोनों आपस विच काम किरिया विच सन। मछियां, केवल मछियां। 10,000 साल की तपस्या, ये 2 मछियां ने मच्छंदर नाथ की भंग करके रख दी। 10,000 साल में फिर कहां गुरु साहब ने बड़ी उच्ची बांग दिंदे हैं कि सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। गुरु साहब कहेंगे पानी विच रह के बंद बंद रेजा कटा के हवन विच प्राण आहुति करके तू वाहिगुरू नूं नहीं पा सकदा। पाठ करके सिमरतियां दे व्याख्यान करके तू बहुता ज्ञान हासिल करके तू वाहिगुरू नूं नहीं पा सकदा। नहा धो के तीर्थां ते इशनान करके सरोवरां दा इशनान करके तू वाहिगुरू नूं नहीं हासिल कर सकदा। चुप रह के मौन धारण करके दुनिया दे पदार्थ हासिल करके भी तू वाहिगुरू दा ज्ञान हासिल नहीं कर सकदा। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे, पंच जनास्यो संग ना छुटकियो। अधिक अहंग बुध बाधे प्यारे, इन विध मिलन ना जाई। मैं किए करम अनेका, मिलांगा किवें? हार परियो स्वामी कै द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका। गुरुदेव फरमा रहे हैं उच्चा आचरण कहना बड़ा सौखा है, बनाना बड़ा औखा है। तेनू दसना बना किवें? गुरु दी तरफ मुख कर लै, गुरमुख मन समझाइए। गुरु दी तरफ अपना मुख कर लै, अपने मन नूं समझा लै। आत्म राम विचार जिहड़ा सारियां दे अंदर, सारियां दे घट घट दे अंदर राम बसिया, उसदे गुरबाणी दी, उसदे शब्द दी विचार, नित दी विचार, नितनेम दी विचार तेनों उच्चा आचरण रखण ते मजबूर हो जाएगी। फिर आचरण तेरा उच्चा जदों डोलन लगेगा ना, यकीन करी सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले चढ़ाए कलगीधर नाल तेरे सामने खड़े होणगे तेरा आचरण बचाण लई। पर शर्त यह है कि सिक्ख्या तो गुरु दी लै रहा होवे, केवल गुरमुख मन समझाइए, विचार गुरु दे शब्द दी कर रहा होवे। भाई जोगा जदों जा रहा है विआह दियां लावां छोड़ के ये वैस दे दरबार विच जदों जाके खड़ा हुंदा है, ते सानू सारियां नू साखी चंगी तरह दृढ़ है
कि चौबदार वैश के दरबार का कौन बनया सी? दसम गुरु। कि भाई साहब ये तुहाडे आउण दी थां नहीं है, उच्चा आचरण बना लै। गुरुदेव अगली पंक्ति विच फरमा रहे हैं, त्रिविध करम कमाइए आस अंदेशा होए। त्रिविध की है? ये तीन दी गुरबाणी विच महानता बड़ी है, तीन दी गिनती असी अरदास विच भी बड़ी बार पढ़ते हैं। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। हर बार अरदास के आखिरी बंद विच बोला गया बोलो जी वाहिगुरु, जहां बोलिया गया खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। इत्थे 3 बार क्यों? सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। सुखमनी साहिब विच पढ़ांगे सत 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 प्रभ स्वामी गुरप्रसाद किनै वख्यानी, सच 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 सब कीना, कोट मधे किनै बिरले चीना, भला भला भला। 3 बार क्यों? इधर भी गुरुदेव फरमा रहे हैं जदों तक तू मन दे पिछे लग्या रहेगा तू 3 दे चक्करां विच फसिया रहेगा। ये 3 दे चक्कर तेनों 3 ही कढ सकते हैं। वैरी 5 होण ते मुकाबला करने वाले भी 5 होण ते मुकाबला सौखा होवेगा। ये 3 विच असीं किहड़े फसे हां? रजस गुण, तमस गुण ते सतक गुण। राजस तामस सातक, ये 3 गुणी माया है, 3 गुणी माया है। इस विच कहंदे ने तू मन दे पिछे लग के कदी रजस गुण विच फसिया है, कदी तामसिक गुण विच फसिया है, कदी सात्विक गुण में तू फसिया होया, पर फसिया तू होया यकीनन। ते गुरुदेव कह रहे हैं त्रिविध कर्म कमाई है। जदों तक तू माया दे इन्हां 3 गुणां विच फसिया रहेगा तैनूं 2 चीज़ां कदी पिछा नहीं छड्डणगियां। एक आस मनुख तो, दूसरा अंदेशा भी मनुख दा। अंदेशा हुंदा डर। ना तैनूं उम्मीद मनुखां तो हटेगी, ना तेरा डर कदी मनुखां तो हट सकेगा। हुण गुरु साहब कहणगे जेड़ा मनुख दी ओट लै रहा है मानुख की टेक बिरथी सब जा। ते गुरु साहब कह रहे हैं त्रिविध कर्म कमाई है आस अंदेशा होए। जदों तक तू ये 3 गुणां विच माया च फसिया रहेगा तैनूं लोकां तो ही उम्मीद और लोकां दा ही भै तेरे अंदर सदा रहेगा। क्यों? गुरबिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए। ते हुण ये त्रिकुटी भाव ये 3 गुणां दा जंजाल ये किवें छुटेगा? ये सच्चे गुरु दी विचार नूं सुण के, सच्चे गुरु दी विचार नूं सुन के, उसते तुर के, उसते सच्ची भावना रख के। ये ना समझ लेना कि केवल सुन के छुट जाएगा। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, ता लिखा अंतरगत तीरथ मलना। सतगुर नो सबको वेखदा जेता जगत संसार डिठै मुक्त ना हो गई। वेख के ते मुक्त अज तक कोई नहीं होया। कौडे राक्षस ने भी गुरु नानक साहब ने वेख्या सी, सज्जन ठग ने भी वेख्या सी, पर देख के ते मुक्त कोई नहीं होया। वली कंधारी भी वेख रहा सी। जलाल जलालुद्दीन गुरु तेग बहादुर साहब नूं वेख रहा है तां भी सिर धड़ तो जुदा कर दिंदा है। डिठै मुक्त ना हो गई। जिचर शब्द ना करें विचार। जदों तक गुरु दे शब्द दी विचार नहीं करता ये त्रिकुटी तेरे पल्लियों छुटदी नहीं। गुरुदेव फरमा रहे हैं जे त्रिकुटी छुट जाए तो होवेगा कि निज घर महल पछाणीए नदर करे मल धोए। गुरुदेव कह रहे हैं वाहिगुरु दी नज़र सवली होवे तेरे ते रहम कर दवे ते तैनू ओ निज घर दा टिकाणा मिल जाएगा जिस तो बाद तैनू होर घर भालण दी लोड़ नहीं पवेगी। अपना घर ते असी देखिए बार बार सवारदे हां, चिंता भी बड़ी रहिंदी है। वधिया तो वधिया टाइल लगवांदे हां, वधिया तो वधिया मार्बल हैसियत अनुसार, वधिया तो वधिया कोठी बनाउंदे हां, पर गुरुदेव सानू ताड़ना करदे हन जो घर छड्ड गवावना सो लग्गा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना है। प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहन। गुरुदेव फरमा रहे हैं वाहिगुरु दी नज़र सवली होवे तैनू थो घर निज घर टिकाणे दा घर मिल जाएगा जिधरों तू डोलेगा कदी भी नहीं,
जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मनै बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर, न होए गो फेरा। आखिरी पंक्तियां श्रवण करिए। बिन गुर मैल न उतरै, बिन हर क्यों कर वास, एको शब्द विचारिए, अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइए, हाँ सद बलहार जास। बिना गुरु दे, बिना गुरु दी विचार दे तेरे अंदर जन्मां जन्मांतरां दी मैल दा धुपना ते बड़ा औखा है। उस तो बिना निज घर विच वासा होना बड़ा औखा है। जन्मां दी मैल है कई जन्मां दी, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हो आस्या। जन्मा जन्मांतरा दी मैल, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। एको शब्द विचारिए, अवर त्यागै आस। ए ना होवे गुरुद्वारे भी मैं आ रहा हुआ ते मेरे हत्थां विच मौलियां भी बनिया हुआ, आ रहा होवा गुरुद्वारे, कह रहा होवा सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मै राजान। बड़े धड़ल्ले नाल अपने धर्म का प्रचार कर रहा होवा, औरतां नूं जी बराबर का अधिकार है सिख धर्म विच, ते बन लवां रखड़ियां, ते मेरे तो बदनसीब आदमी कोई नहीं। रखड़ी बन्नण दा भाव, ऐ भैणे बन मेरी कलाई विच रखड़ी ते मैं करांगा तेरी रख्या, क्यों तू कमजोर जो ठहरी। वेखिए माता भाग कौर नूं, वेखिए माता साहिब कौर नूं, किस तो रखड़ियां उन्होंने बनवाइयां। उन्होंने रखड़ी बनवाई सी पर किस तो, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतरजामी। हुण इस तो यह भी ना समझ लीए कि रखड़ियां लियाइए तो पावियां नूं बन्नी जाइए। वेख्या मैं भी ग्रंथी सिंह होरां दा ही लड़का, गुरुद्वारे साहब रखड़ी आवेगी, पावियां नूं लोकी वध चढ़ के रखड़ियां बन्नणगे। गुरु तू ही मेरा भरा है, यानी रखड़ी वाले दिन ही गुरु भरा बनिया। अगे पिछे भावें भावें पड़ी जाओ, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा, भावें पड़ी जाओ, असर सानू कोई नहीं होना। पत्थर असी बने रहना, भावें जिन्ना मर्जी पानी पाई जाओ। गुरुदेव कह रहे हैं एको शब्द विचारी है, केवल एक शब्द की विचार नाल ही ये त्रिकुटी छुट सकती है। ये ना होवे मत्था मैं इत्थे भी टेक देवां, जावां डेरेदार ते उसदे कदमां नूं भी चुम्मी जावां। ये सिर बड़ा महंगा है। लोकी एवें नहीं सानू सरदार आखदे, सर दे के लईयां सरदारियां ने। सिर वेच लियो मुल महंगा, बड़ा महंगा मुल कीता है। दस्तार मैं कलगीधर दी सजा लवां ते जने खने दे कदमां ते दस्तार गिरी जावे। एको शब्द विचारी है, मतां किधरे कबरां ते जाई जावे, मतां किधरे किसे ज्योतिषियां कोल, किसे पत्रका वाचन कोल, किसे कुंडलियां मिलाण वाले कोल जाई जावे। एको शब्द विचारी है। एक शब्द दी विचार नहीं तो मैं गुरु दा सिख भी नहीं। पता है क्यों? आसा की वार विच रोज पढ़ोगे, जे एक होए तां उगवै, रुत्ती हूँ रुत होए। साड़ी एक होने की विचारता रही दूर। गुरु साहब कह रहे बीज भी एक ना होवे तो फल ही नहीं सकता। दाल हुंदी है ना, बीज का दुफाड़ हुंदा है, बीज नूं तोड़ दो तो दाल बन जाती है। तो दाल बोवो कदी दाल उगेगी कदापि नहीं। ये जब तक एक नहीं हुंदी उदों तक उगदी ही नहीं। गुरु साहब कहते हैं एको शब्द विचारिए, अवर त्यागै आस, होरां दी आस छोड़, एक शब्द दी विचार कर। आखिरी पंक्ति बाकमाल गुरु साहब कह रहे हैं, जो कहते हैं ना ऊंचो थान सुहावना, उस दी गुरु साहब गवाही भरदे, नानक देख दिखाइए हाँ सद बलहार है जास। मैं ऐसे गुरु तो बलहार हुंदा, वारने बलहारने लख बरिया। कदों बलहार हुंदा, क्यों बलहार हुंदा? क्योंकि ओ मेरे गुरु ने परमात्मा दा दर वेख लिया है। नानक देख दिखाई है, हुण उसने दर देख लिया है, दर वेख लिया है वाहिगुरु दे घर नूं, क्योंकि उसने चंगी तरह वेख लिया है। हुण ओ मैनू अपना घर वाहिगुरु दा दर चंगी तरह विखा भी सकता है,
गवाही भी भर सकता है। अमृतसर का इधरों मैं रस्ता वेख्या होवे, किसी नूं समझा देवां, समझाना सौखा है, पर सुनिया ही केवल होवे, हुण दूसरे नूं समझांगा बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। सो वेखे दे पिछे टुर लईए, बाणी दी किसे एक पंक्ति दा लड़ पकड़ लईए। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमक सदा हर जपने, पल पल जपी जाइए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाइए, मुक्त पदार्थ तेण, सारियां दी कदमां दी खाक हो जाइए। आखिरी एक प्रकरण सुना के विचारां नूं संकोच लवां। किसे नूं रेण कह लेना किसे दी तौहीन है कि तू मेरे कदमां दी खाक है, बड़ी तौहीन है। पर अपने आप नूं गुरु दी रेण कह देना बड़ा महान उपलब्धि है। मैं गुरु दी रेण, पर एक केवल कहण नाल रेण नहीं होवांगे। सीसगंज साहब एक व्यक्ति जिस दे मूहों केवल यही निकलदा सी, मैं ते आप दे कदमां दी खाक हाँ, आप दे कदमां दी खाक हाँ, तुहाडे चरनां दी धूड़ हाँ। मस्कीन साहब कहंदे मैं जा रहा सी, मैनूं मिल गया रस्ते च, फतेह बुलाउण तो बाद कहंदा मस्कीन साहब मैं तुहाडे कदमां दी खाक, तुहाडे कदमां दी खाक। कहते 3-4 दिन गुजरे, रोज़ अमृत वेले मैं कथा ते जावां, दरवाजे ते ही मिल जावे, फतेह बुलाण तो बाद कहे मस्कीन साहब मैं आप दे कदमां दी खाक, मैं संगत दे कदमां दी राख। तो मस्कीन साहब पुछ लेंदे कि ये इस तरह क्यों कहता है। लोग कहते हैं जी सीसगंज साहब ही रहिंदा है, बहुता समा संगत करता है, तो इसका तखल्लस बन गया कहना, आदत बन गई है कहना कि मैं कदमां दी खाक। बड़ा निमरता है जी, बड़ी निमरता है, सारिਆਂ ਨੂੰ कहता कदमां दी खाक। मैं वेख्या कई प्रधान ते सकत्तर अपने नाम के अगे अजकल लगा रहे मुख सेवादार। सेवादार बड़ी कमाल की गल है, सेवादार होना बड़ा निमरता वाला शब्द है, लगाना चाहिए है। पर हुण इस बंदे वाला हाल ना होवे कि मस्कीन साहब जा रहे हैं सवेरे, ये दरवाजे ते मिल गया 5वें दिन भी, मस्कीन साहब मैं आप जी दे कदमां दी खाक, तुहाडे कदमां दी खाक। मस्कीन साहब पता है की कहंदे, कहंदे वाकई देख लिया मैं 4-5 दिनों तो है तू मेरे कदमां दी खाक ही, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहंदे मुँह नहीं बन गया उहदा, कहंदे अगले दिन तो उसने फतेह बुलानी छड़ दी मैनू। कहंदे मैं ही कोल सद लिया भाई, जदों तक तो तू कहंदा सी कदमां दी खाक उदों तक तो ठीक सी, मैं क्या ते तैनूं चुप गई गल। यानी हुणे दिलों हुणे अंदरों इसने नहीं मन्निया सी कि मैं कदमां दी खाक, मैं कदमां दी राख, मैं कदमां दी खाक, नहीं मन्निया सी। कह लेना मुख सेवादार, मैं कह दवां बड़ा निमरता का शब्द है, बड़ा मुबारक है। पर जुर्रत करके मैं ये भी कह देवां, थल्ले मैं आके पुछ लवां सेवादार सिंह किधर ने, तो जे प्रधान साहब सेवादार नूं अगे कर देण ना तो कदमां दी खाक हुणे नहीं बने। ये तो प्रधान आपे अगे आवे जी मैं सेवादार, हुण कदमां दी खाक है। पग मैं अपनी भी विच रख लवां, कदमां दी खाक हो जाना ही, ये जर्रा हो जाना ही वाहिगुरू दे दर ते मैनूं ले जा सकता है। इधर अहंकार सियाणप चतुराई ना चतुर्भुज पाई। सो कोशिश करिए वाहिगुरू दे दासां दी कदमां दी खाक हो जाइए, वाहिगुरू दा नाम सिमरते रहिए, बाणी दी विचार कर लईए, तां कह सकते हैं ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभापे मिले। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट शुक्र। समा मैं वध भी लै गया, प्रबंधक वीरां दा हुक्म भी सी 10-15 मिनट वध लै सकते हो, पर कोशिश करिए कि वाहिगुरू दे कदमां दी खाक होण लई वाहिगुरू दी बाणी नाल जुड़ जाइए। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दा आप सिर ते हाथ रख के सेवा लै ली, मैंबर साहिबाना दा जिन्हां ने हुक्म ला के कथा की सेवा दी है। कल का भी दिन सी, पर कल रजौरी गार्डन में समा पहला दे बैठा सी, सो उस लिए मैं माफ़ी मंगदा। फिर कभी आप हुक्म लाओ तो जरूर संगत के दर्शन करा जी। होइयां भुल्लां चुका दी खिमा, इत्थे ही समाप्ति। फतेह जाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसा भाई साहब भाई गगनदीप सिंह जी जो साढ़े इलाके के डी ब्लॉक के हेड ग्रंथी साहब के सपुत्र ने जी, इन्होंने बच्चों को देख रहा है मुझे गाल इन्होंने याद आती कि मैं 10-12 साल में टेस्ट लेता था, 4 साल तक मेरे को इन्होंने सुनने की ड्यूटी जो टेस्ट लिता तो यह उदों आए सैकेंड तो जी अपनी फादर साहब पूरी कमेटी लैके ना सारे गुरुद्वारा साहब आ गए थे। नहीं जी अपने हरकंदी साहब भी बोलते कि नहीं जी मेरा पुत्र ना फर्स्ट आ सकता है, सेकंड नहीं आ सकता किसी तरह भी।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਇਹਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਨਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ।